بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، قرۃ العین حیدر نے آگ کا دریا کے آغاز میں کس مغربی شاعر کی نظم کا ٹکڑا درج کیا ہے؟ ملٹن، دانتے، گوئٹے یا پھر TS ایلیٹ؟ جی، قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا یہ داخل نصاب ہے جو 1959 عیسوی میں شائع ہوا ہے یہ ناول۔ جی، تو سوال نمبر 21 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیو، چوتھا یعنی TS ایلیٹ۔ یاد رکھیے، قرۃ العین حیدر کے آگ کا دریا کا آغاز جو ہے قرۃ العین حیدر نے مغربی شاعر TS ایلیٹ کے نظم کا ٹکڑا جو ہے درج کیا ہے۔ یاد رکھیں دوستو، قرۃ العین حیدر نے آگ کا دریا کے آغاز میں جو ہے TS ایلیٹ، مغربی شاعر TS ایلیٹ کی نظم کا ٹکڑا درج کیا ہے۔ بات کریں آگ کے دریا کے بارے میں، تو آگ کا دریا کا سن اشاعت 1959 ہے، اور قرۃ العین حیدر نے جو ہے اس ناول میں شعور کی روح تکنیک استعمال کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، ناول آگ کا دریا میں قرۃ العین حیدر نے شعور کی روح تکنیک استعمال کی ہے۔ شعور کی روح تکنیک جو ہے قرۃ العین حیدر نے آگ کا دریا میں استعمال کیا، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا۔ اور قرۃ العین حیدر نے اس ناول کو 4 ادوار میں تقسیم کیا ہے، اور ہر دور کو جو ہے 4 کہانیوں میں پیش کیا ہے۔ اور قرۃ العین حیدر کا یہ ناول جو ہے آگ کا دریا، اس میں انہوں نے جو ہے 2500 سال تاریخ کو پیش کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، 2500 سال تاریخ کو جو ہے اس ناول میں انہوں نے پیش کیا ہے۔ اور بات کریں ناول آگ کا دریا کا عنوان، تو ناول آگ کا دریا کا عنوان جو ہے قرۃ العین حیدر نے جگر مراد آبادی کے شعر سے اخذ کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے گا، قرۃ العین حیدر نے جگر مراد آبادی کے شعر سے اخذ کیا ہے ناول آگ کا دریا کا عنوان۔ آگ کا دریا جو ہے، جیسے کہ جگر مراد آبادی کا شعر ہے وہ، یہ عشق نہیں آساں بس اتنا ہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، یہ جگر مراد آبادی کا شعر ہے۔ اسی شعر سے جو ہے انہوں نے جو ہے اخذ کیا ہے اس ناول کا عنوان۔ دوستو، قرۃ العین حیدر نے اس ناول کا انگریزی میں ترجمہ جو ہے دا ریور آف فائر کے نام سے کیا ہے۔ دا ریور آف فائر کے نام سے جو ہے انہوں نے کیا ہے۔ چلیے جی، بات کریں قرۃ العین حیدر کی پیدائش اور وفات کے بارے میں، تو ان کی پیدائش 1927 عیسوی کو علی گڑھ میں ہوئی ہے، اور وفات 2007 عیسوی کو نوئیڈا میں۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 22 کی طرف۔ شعر فہمی اور کتاب فہمی میں وہ ایک مستغنی آدمی تھے، کیسا ہی مشکل مضمون ہو وہ ایک سرسری نظر میں اس کی تہ تک پہنچ جاتے تھے۔ یہ عبارت کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ سی پارہ دل، یادگار غالب، یادوں کی بارات، یا پھر غبار خاطر؟ دوستو، یہ سبھی تصانیف کے مصنف کے نام جو ہے کامنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیں۔ جی، تو سوال نمبر 22 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی یادگار غالب۔ یادگار غالب کو مولانا الطاف حسین حالی نے 1897 عیسوی میں لکھا تھا۔ یاد رکھیے گا، 1897 عیسوی میں لکھا تھا، اور یہ عبارت جو ہے شعر فہمی اور کتاب فہمی میں وہ ایک مستغنی آدمی تھے، کیسا ہی مشکل مضمون ہو وہ ایک سرسری نظر میں اس کی تہ تک پہنچ جاتے تھے، یہ عبارت جو ہے اسی کتاب سے ماخوذ ہے جسے حالی نے لکھا تھا 1897 عیسوی میں۔ یاد رکھیے گا، یادگار غالب جو ہے 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ یادگار غالب جو ہے کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ تو 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں مرزا غالب کے حالات زندگی، اور دوسرے حصے میں غالب کے تمام کلام جو ہے نظم و نثر کا جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ غالب کے تمام کلام کے نظم و نثر کا بیان کیا گیا۔ پہلے حصے میں مرزا غالب کے حالات زندگی، اور دوسرے میں غالب کے تمام کلام کا نظم و نثر کا بیان کیا گیا ہے۔ یہ بات کریں سی پارہ دل کی، تو سی پارہ دل کس کی تخلیق ہے؟ جی، تو خواجہ حسن نظامی کی یہ تخلیق ہے، خواجہ حسن نظامی صاحب کی یہ تخلیق ہے سی پارہ دل۔ یاد رکھیے گا، یہ اس کا موضوع جو ہے، اس کتاب کا موضوع طنز و مزاح ہے۔ اور بات کریں جو ہے یادوں کی بارات، تو یادوں کی بارات یہ جوش ملیح آبادی کا کیا ہے؟ تو خود نوشت ہے۔
यादों की बारात जोश मलिह आबादी का खुद नविश्त। और ये गुबार ख़ातिर तो आप लोग मालूम होगा, गुबार ख़ातिर जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का क्या है, तो खुतूत का मजमुआ है दाखिल नसाब। बढ़ते हैं सवाल नंबर 23 की तरफ। मनको ख़ान किस नावल का किरदार है? फिरदौस बरी, फ़तह अंदलस, मीना बाज़ार या फिर ज़वाल बगदाद? अगेन फिर मैं कहूँगा, ये सभी तसानीफ़ के मुसन्निफ़ का नाम जो है कमेंट सेक्शन में लिखें जी। तो सवाल नंबर 23 का हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, मनको ख़ान जो है ये जो है नावल फिरदौस बरी का किरदार है। अब्दुल हलीम शर्र का ये नावल है फिरदौस बरी, जो 1899 ईस्वी में मंज़र आम पर आया है। फिरदौस बरी जो है एक तारीख़ी नावल है, याद रखिएगा, फिरदौस बरी तारीख़ी नावल है। और इस नावल में कितने अबवाब हैं साथियों? फिरदौस बरी में तो याद रखिएगा टोटल 9 अबवाब हैं। पहला है परियों का गोल, दूसरा प्यारी ज़ुमरुद तो कहाँ गई, तीसरा मुल्ला आला का सफ़र, और चौथा है फिरदौस बरी, पाँचवा जो है फिर वही आलम इनासिर, छठा मरदूद अजली, सातवां बलगान खातून का सफ़र, आठवां इश्शायराज और नवां जो है इंतकाम। चलिए जी, अब बात करें फ़तह अंदलस के, तो फ़तह अंदलस ये फ़तह अंदलस और मीना बाज़ार और उसके अलावा ज़वाल बगदाद, ये किताबें, ये तीनों तसानीफ़ जो हैं ये अब्दुल हलीम शर्र के हैं। यानी तीनों नावल हैं, फ़तह अंदलस, मीना बाज़ार और ज़वाल बगदाद, ये तीनों जो हैं अब्दुल हलीम शर्र का ही नावल है। बात करें अब्दुल हलीम शर्र की पैदाइश और वफ़ात के बारे में, तो अब्दुल हलीम शर्र की पैदाइश जो है 1860 ईस्वी को लखनऊ में हुई है और वफ़ात जो है 1926 ईस्वी को लखनऊ ही में हुई है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं। अच्छा, फिरदौस बरी के कुछ किरदार से जो है अक्सर जो है इनके फिरदौस बरी के किरदार से सवालात बनते हैं, तो इनके किरदार जो है कुछ देख लेते हैं यहाँ। फिरदौस बरी का किरदार जो है हुसैन, ये बहुत ही मुतहर्रिक फ़ाल किरदार है हुसैन। ये ज़ुमरुद का आशिक होता है, ज़ुमरुद भी मुतहर्रिक और फ़ाल किरदार है, जिससे हुसैन शादी करता है। मूसा ज़ुमरुद का भाई है, मूसा का भी जो है इससे भी सवाल बना हुआ है। इमाम नजमुद्दीन ये हुसैन के चचा होते हैं, जिसका कत्ल हुसैन कर देता है। उसके बाद इमाम बिन नसर हैं, ये हुसैन इनका भी कत्ल कर देता है, ये इमाम होते हैं। और नसीरुद्दीन तोसी ये हुसैन और ज़ुमरुद का निकाह पढ़ाते हैं। शेख वजूदी ये फ़िरक़ा बातिनिया का सरगना है। रुकनुद्दीन खुर्शा ये भी बातिनिया का इमाम है। उसके अलावा साथियों काजिम जुनूबी एक फ़कीर है, याक़ूब मूसा का दोस्त है। शेखुल जब इसको तूरे मानी कहते हैं, शेखुल जब को। हसन बिन सबा को इमाम क़यामत कहते हैं, इमाम क़ायम क़यामत कहते हैं हसन बिन सबा को। चुग़ताई ख़ान ये बलगान ख़ातून का बाप है, याद रखिएगा, चुग़ताई ख़ान ये बलगान ख़ातून का बाप, जिसका कत्ल दीदार ने किया था। बलगान ख़ातून हलाको ख़ान और मनको ख़ान की बहन होती है। बलगान ख़ातून किसकी बहन है? तो हलाको ख़ान और मनको ख़ान की। और तुबी ख़ान ये मनको ख़ान का बेटा होता है। मरजान एक हूर है, इससे भी सवाल बन चुका है। अक्सर जो है फिरदौस बरी नावल फिरदौस बरी के किरदार से सवालात बनते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 24 की तरफ। ये बात याद रखनी चाहिए कि शायर और उसके कलाम के रुतबे का अंदाज़ा उसके कलाम की क़िल्लत और कसरत से नहीं होता, बल्कि इस बात से होता है कि उसके मुंतखब और बरगज़ीदा अशार किस दर्जे के हैं। ये इबारत किस किताब से माखूज़ है? मक़ालात सर सैयद, मक़ालात शिबली, गुबार ख़ातिर या फिर यादगार गालिब? यादगार गालिब 1897 से में हाल ही ने लिखा था जी, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है जी साथियों। सवाल नंबर 24 का हमारा सही जवाब हो जाएगा चौथा, यानी यादगार गालिब। ये जो इबारत है दोस्तों, ये इबारत भी जो है यादगार गालिब से ही माखूज़ है। ये बात याद रखनी चाहिए कि शायर और उसके कलाम के रुतबे का अंदाज़ा उसके कलाम की क़िल्लत और कसरत से नहीं होता, बल्कि इस बात से होता है कि उसके मुंतखब और बरगज़ीदा अशार किस दर्जे के हों। ये इबारत जो है मौलाना अल्ताफ़ हसन हाली की तसनीफ़ यादगार गालिब, जो 1897 से में लिखी गई है, जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, उसी से ये माखूज़ है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 25 की तरफ। हमारे मुल्क में अक़ल व दानिश का कितना ज़बरदस्त कहत है। आप हमारी ममलकत के चुने हुए लोग हैं, जिनके हाथों में हमारी बागडोर है। मुस्तकिल आपकी तरफ देख रहा है, मुस्तकबिल आपकी तरफ देख रहा है। आप इस ममलकत के मेमार हैं और आप जैसे ज़हीन और फाजिल लोग ज़िंदगी की संगीन सच्चाइयों को नहीं देख सकते। अगर आप रोज़ 4 शहरियों को फांसी देंगे तो शहर
शहर गुस्से और नफरत से उबल पड़ेगा। मंदरजा बाला इक़्तिबास किस ड्रामे से लिया गया है? जी, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा साथियों तीसरा, यानी ड्रामा ज़हाक। ड्रामा ज़हाक किनका लिखा हुआ है? तो याद रखिएगा 1926 से 2010 वाले का ये ड्रामा है, यानी मोहम्मद हसन का दाखिल निसाब ड्रामा है। और इस ड्रामे में है ड्रामा ज़हाक में कितने मनाजिर हैं? तो याद रखेंगे टोटल 6 मनाजिर हैं। ड्रामा ज़हाक में इंसानों के भेजों पर ज़िंदा रहने वाले शहंशाह की कहानी बयान की गई है। इस ड्रामे से अक्सर किरदार पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा इस ड्रामे में एक किरदार है नौशाबा का, जो बहुत ही मशहूर है दोस्तों। नौशाबा का किरदार जो है बहुत ही मशहूर है, जो रक़ासा होती है। फ़रीदों का भी किरदार मशहूर है। फ़रीदों क्या होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा फ़रीदों एक शायर होता है फ़रीदों। और बूढ़ा कौन है? तो बूढ़ा जज होता है। और क़ैदी एक जुर्जान है। और चलिए जी, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 26 की तरफ। हाँ, बात करें ड्रामा ज़हाक के, तो दोस्तों ड्रामा ज़हाक जो है 1800 नहीं 1977 ईस्वी में जो है असरी अदब में ये ड्रामा जो है पहली बार शाये हुई है। याद रखिएगा असरी अदब में ड्रामा ज़हाक पहली बार जो है शाये हुई, और किताबी शक्ल में 1980 ईस्वी में ड्रामा ज़हाक शाये हुई है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और सवाल का जवाब दीजिएगा कि किसने जो है ड्रामा ज़हाक को सियासी तमसील करार दिया है? सियासी तमसील जो है किसने जो है ड्रामा ज़हाक को करार दिया है, सियासी तमसील? जी, तो याद रखिएगा ज्ञानचंद जैन ने जो है 1923 से 2007 वाली ने ड्रामा ज़हाक को सियासी तमसील करार दिया है। चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 26 की तरफ। होरोश गैरते सरो खजलत ज़दा शमशाद ज़री कमर नाजुक बदन सीम बर चुस्त व चला कमसिन उलटपन के दिन उछलती कूदती मर्दाना वार प्यादा और जौहर निगार हवा पर एक आफताब महशर सवार गर्द परियों की कतार ताज मुरस्सा कज सर पर लिबास शाहाना पर पुरतकल्लुफ़ दर बर शिकार खेलती सैर करती चली आती है। मंज़ बाला इबारत किस दास्तान से मख़ूज़ है? जी, तो सवाल नंबर 26 का हमारा सही जवाब आ जाएगा दोस्तों फ़साने अजायब। ये इबारत जो है, ये मुश्किल अल्फाज जो हैं ये दास्तान फ़साने अजायब में ही आ सकते हैं दोस्तों। जी, बात करें दोस्तों फ़साने अजायब की, तो फ़साने अजायब को जो है रजब अली बेग सुरूर ने 1824 ईस्वी में लिखा था। याद रखिएगा 1824 ईस्वी में जो है लखनऊ में लिखा था। जो है लखनऊ में नहीं लिखा था, कानपुर में लिखा था। रजब अली बेग सुरूर ने जो है फ़साने अजायब को कानपुर में लिखा था। कब लिखा था? तो याद रखिएगा 1824 ईस्वी में लिखा था। और इस दास्तान में यानी फ़साने अजायब में लखनऊ की तहज़ीब व माशरत पेश की गई है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा लखनऊ की माशरत जो है फ़साने अजायब में पेश की गई है, लेकिन लिखी गई है कानपुर में 1824 ईस्वी में। किसकी फरमाइश पर लिखी गई है ये भी बता दीजिएगा। जी, तो हकीम असद अली ख़ान की फरमाइश पर लिखी गई है। हकीम असद अली की फरमाइश पर दास्तान फ़साने अजायब को रजब अली बेग सुरूर ने लिखा है। और याद रखिएगा ये शुमाली हिंद की पहली तबाज़ात दास्तान है। शुमाली हिंद की पहली तबाज़ात दास्तान है ये फ़साने अजायब। और पहली बार कब शाये हुई? तो याद रखेंगे 1843 ईस्वी में दास्तान फ़साने अजायब पहली बार 1843 ईस्वी में शाये, और दूसरी बार आप लोगों को मालूम होगा पिछली क्लास में हम लोगों ने जिक्र किया था जी 1847 ईस्वी में। चलिए जी, और ये भी याद रखिएगा फ़साने अजायब की इबारत जो है इंतहाई पुरतकल्लुफ़ नहायत पेचीदा और मुक़फ़्फ़ा मुसज्जा के हैं। याद रखिएगा दोस्तों। और इस दास्तान को जो है रशीद हसन ख़ान ने मुरतब किया है, ये भी याद रखिएगा। चलिए जी, अब बढ़ जाते हैं, बात कर लेते हैं रजब अली बेग सुरूर के बारे में। इनकी पैदाइश 1786 ईस्वी को हुई है, याद रखिएगा लखनऊ में हुई है। और वफ़ात जो है 1869 ईस्वी को जो है 1869 ईस्वी को बनारस में। चलिए जी, अब बढ़ते हैं
सवाल नंबर 27 की तरफ। तज़किरा चमनिस्तान शोरा के मुसन्निफ़ का पूरा नाम क्या है? तज़किरा चमनिस्तान शोरा के मुसन्निफ़ का पूरा नाम क्या है? जी, तो सवाल नंबर 27 का हमारा सही जवाब हो जाएगा साथियों तीसरा, यानी लक्ष्मी नारायण शफ़ीक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये तज़किरा है, अक्सर इससे सवालात बनते हैं साथियों, कई दफ़ा जो है इनसे सवालात बन चुके हैं तज़किरा चमनिस्तान शोरा से, कभी ज़ुमरे में तो कभी डायरेक्ट ऐसे जो है सवालात आते हैं जी। तो याद रखिए तज़किरा चमनिस्तान शोरा ये लक्ष्मी नारायण शफ़ीक का तज़किरा है। कुछ तज़किरा हैं तो उन्हें हम पढ़ लेते हैं क्योंकि तज़किरा से अक्सर जो है दो एक सवाल बन ही जाते हैं। चमनिस्तान शोरा ये 1762 ईस्वी जो है लक्ष्मी नारायण शफ़ीक ने लिखा था और चमनिस्तान शोरा को मौलवी अब्दुल हक ने मुरत्तब किया। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि लक्ष्मी नारायण शफ़ीक की तज़किरा चमनिस्तान शोरा को किसने मुरत्तब किया है? तो याद रखिएगा मौलवी अब्दुल हक ने। अब बात करें निकातुश शोरा, तो निकातुश शोरा ये तज़किरा भी बहुत ही मशहूर है और इसे मीर तकी मीर ने 1751-52 में फ़ारसी में लिखा था। इसे फ़ारसी में लिखा हुआ उर्दू का पहला तज़किरा कहा जाता है। याद रखिएगा फ़ारसी में लिखा हुआ उर्दू का पहला तज़किरा है और इस तज़किरा को भी मौलवी अब्दुल हक ने मुरत्तब किया है। गुलशन गुफ्तार 1752 ईस्वी में लिखी गई ये पहला दक्कनी तज़किरा है जिसे ख्वाजा हमीद ख़ान हमीद औरंगाबादी ने लिखा था। तोहफ़तुश शोरा ये अफजल बेग काकशाल का तज़किरा है। मखज़न निकात ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट तज़किरा है। 1775 ईस्वी में क़यामुद्दीन क़ाइम चांदपुरी ने इस तज़किरा को लिखा था और इसे मौलवी अब्दुल हक ने मुरत्तब किया है। रेख्ता गोयान को फ़तह अली गुरदेज़ी ने लिखा था और फ़तह अली गुरदेज़ी का ये तज़किरा है रेख्ता गोयान और इस तज़किरा को भी मौलवी अब्दुल हक ने मुरत्तब किया है। तबक़ातुश शोरा ये तज़किरा तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा तबक़ातुश शोरा कुदरतुल्लाह शौक़ ने इस तज़किरा को मुरत्तब किया है, लिखा है 1774 ईस्वी में कुदरतुल्लाह शौक़ ने। तज़किरा शोराए उर्दू ये भी मशहूर है, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, मीर हसन ने 1774 ईस्वी में लिखा था। गुल अजायब ये तज़किरा भी, ये जितने हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं, सभी को याद रखिएगा आप। गुल अजायब की कोई भी इसमें से पूछ लिया जाएगा, समझे, तो आपने सबको याद रखना है। गुल अजायब को 1778 ईस्वी में असद अली ख़ान तमन्ना ने लिखा था और इस तज़किरा को मौलवी अब्दुल हक ने मुरत्तब किया। तज़किराए हिंदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट तज़किरा ग़ुलाम हमदानी मुसैफ़ी का तज़किरा है। 1794 ईस्वी में मुसैफ़ी ने लिखा था और इस तज़किरा को जो है मौलवी अब्दुल हक ने ज़्यादातर जो है तज़किरा को मौलवी अब्दुल हक ने ही मुरत्तब किया है। रियाज़ुल फ़सा ये ग़ुलाम हमदानी मुसैफ़ी का तज़किरा है जिसे मौलवी अब्दुल हक ने मुरत्तब किया। उक़्दे सुरैया ये तज़किरा भी मुसैफ़ी का है और इस तज़किरा को भी जो है मौलवी अब्दुल हक ने मुरत्तब किया है 1870 से 1961 वाले ने। चलिए जी, अब यहाँ देखिएगा गुलशन हिंद मोस्ट इम्पॉर्टेंट तज़किरा। इस तज़किरा के खालिक हैं मिर्ज़ा अली लुत्फ़ और ये तज़किरा जो है उर्दू ज़बान में लिखा हुआ पहला तज़किरा। फ़ारसी में लिखा हुआ पहला तज़किरा कौन सा है? तो हमारा निकातुश शोरा हो जाएगा और उर्दू में लिखा हुआ, उर्दू ज़बान में लिखा हुआ गुलशन हिंद मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का तज़किरा है जी। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 28 की तरफ। ज़ुहद रिंदी किसकी नज़्म है? अल्लामा इक़बाल, जोश मलियाबादी, अकबर इलाहाबादी या फिर सरदार जाफ़री? जी, तो सवाल नंबर 28 का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ज़ुहद रिंदी अल्लामा इक़बाल का नज़्म। याद रखिएगा ज़ुहद रिंदी अल्लामा इक़बाल के पहले शेरी मजमुआ बांगे दरा में शामिल है। बांगे दरा में ये शामिल है। बांगे दरा कब मंज़र आम पर आया? तो 1924 ईस्वी में मंज़र आम पर आया। बांगे दरा की पहली नज़्म के बारे में बात करें तो बांगे दरा की पहली नज़्म हिमालय है, अक्सर सवाल बनते हैं इससे। और बांगे दरा के आखिरी नज़्म तुलूए इस्लाम है, तुलूए इस्लाम। चलिए जी, और इस मजमुआ को यानी बांगे दरा में जो ये मजमुआ है बांगे दरा, इस मजमुआ में जो एक नज़्म आता है आफ़ताब, बांगे दरा में एक नज़्म आता है आफ़ताब, तो इसका तर्जमा जो है गायत्री के नाम से हुआ है। याद रखिएगा ये भी इम्पोर्टेंट है। आफ़ताब का जो तर्जमा हुआ है वो मेरे ख्याल से हिंदी में हुआ है या किसी और लैंग्वेज में, तो ये गायत्री के नाम से हुआ है, गायत्री। चलिए
اور علامہ اقبال کچھ مشہور نظمیں ہیں جو کبھی کبھی زمرے میں آ جاتے ہیں، تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ساتھیوں۔ عہد طفلی، طلبہ علی گڑھ کالج کا نام، سیر فلک، والدہ مرحوم کی یاد میں، شعاع آفتاب، خضر راہ، ہمایوں، شیکسپیئر، شبلی بحالی، ترانہ ہندی، شکوہ، رات اور شاعر، ترانہ ملی، جواب شکوہ، صبح کا ستارہ، انسان، ہندوستانی بچوں کا قومی گیت، داغ، التجائے مسافر وغیرہ۔ سوال نمبر 29 دیکھیے گا۔ ہر ورق، ہر صفحے میں ایک شعر شور انگیز ہے، عرصہ محشر ہے عرصہ میرے بھی دیوان کا، یہ شعر میر کے کس دیوان میں شامل ہے؟ سوال نمبر 29 کا صحیح جواب بتا دیجیے گا۔ جی ساتھیو، تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، یعنی پنجم۔ یہ شعر جو ہے میر تقی میر کے دیوان پنجم میں شامل ہے۔ یہ شعر یاد رکھیے گا، میر تقی میر کے دیوان پنجم میں شامل ہیں۔ اور یاد رکھیے گا شمس الرحمن فاروقی کی مشہور کتاب شعر شور انگیز جو ہے 4 جلدوں میں ہے۔ میر تقی میر کے اوپر جو ہے شعر انگیز جو ہے یہ شعر شور ہے، یہ شعر جی شعر شور، یہی ہے، شعر شور انگیز جو ہے یہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اور اس کتاب کو کس نے لکھا تھا؟ تو فاروقی نے لکھا تھا، یاد رکھیے گا 1935 سے 2020 والے نے لکھا تھا شعر شور انگیز، جو 4 جلدوں پر مشتمل ہے، اور یہ میر تقی میر کے اوپر ہے۔ شعر شور انگیز پر جو ہے فاروقی کو سرسوتی سمان بھی ملا ہے، سرسوتی سمان بھی جو ہے شمس الرحمن فاروقی کو ملا ہے شعر شور انگیز پر۔ چلیے جی، اب بڑھتے ہیں دوستوں سوال نمبر 30 کی طرف۔ نظیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے، یہ جملہ کس ناقد کے رشا قلم کا عطیہ ہے؟ جی تو سوال نمبر 30 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھی دوسرا، یعنی کلیم الدین احمد۔ چلیے کچھ اقوال ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ نے بتانا ہے یہ اقوال کن کے ہیں۔ یہ سبھی جو ہے نذیر اکبر آبادی کے ہی تعلق سے ہیں، 1740 سے 1830 والے سے متعلق یہ سبھی جو ہیں اقوال ہیں۔ چلیے پہلا قول ہے دوستوں، نذیر اکبر آبادی کے بارے میں کس نے کہا تھا کہ یہاں کبیر کے اخلاق اور خسرو کے ذہن کا ایک دلکش امتزاج ملتا ہے؟ نذیر اکبر آبادی کے بارے میں یہ بات کس نے کہا تھا کہ یہاں کبیر کے اخلاق اور خسرو کے ذہن کا ایک دلکش امتزاج ملتا ہے؟ جی تو یاد رکھیے گا نیاز فتح پوری نے، نیاز فتح پوری صاحب نے کہا تھا کہ یہاں کبیر کے اخلاق اور خسرو کے ذہن کا ایک دلکش امتزاج ملتا ہے۔ چلیے جی دوسرا قول دیکھیے گا، نظیر کے تعلق سے ہی ہے، میں نظیر کو بڑا شاعر تسلیم نہیں کرتا اور نہ ہی اچھا شاعر، ہاں لیکن وہ لائق مطالعہ شاعر ضرور ہیں۔ بڑی شاعری نظیر کے قبضۂ قدرت سے باہر ہے۔ یہ قول کن کا ہے؟ جی تو یہ قول جو ہے شمس الرحمن فاروقی صاحب کا ہے، یاد رکھیے گا 1935 سے 2020 والی کا یہ قول ہے۔ میں نظیر کو بڑا شاعر تسلیم نہیں کرتا اور نہ ہی اچھا شاعر، لیکن وہ لائق مطالعہ شاعر ضرور ہیں، بڑی شاعری نظیر کے قبضۂ قدرت سے باہر ہے۔ چلیے ایک اور قول ہے، نظیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے۔ یہ قول کن کا ہے نظیر کے تعلق سے؟ جی تو اگین یہ شمس الرحمن فاروقی صاحب کا یہ قول ہے نظیر کے تعلق سے، نظیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے۔ ایک اور قول ہے، یہ بتانا ہے یہ قول کن کا ہے، فن کی نظر سے ان کی شاعری میں نقص ہیں اور تخیل کی نظر سے طرح طرح کی ناہمواریاں ہیں، مگر ان کی صداقت اور انسان دوستی سب پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ یہ قول کن کا ہے؟ جی تو یاد رکھیے گا احتشام حسین، 1912 سے 1972 والے کا یہ قول ہے نظیر کے تعلق سے، فن کی نظر سے ان کی شاعری میں نقائص ہیں، تخیل کی نظر سے طرح طرح کی ناہمواریاں ہیں، مگر ان کی صداقت اور انسان دوستی سب پر پردہ ڈال دیتی ہے، بقول احتشام حسین۔ چلیے ایک اور قول بتائیے گا یہ قول کن کا ہے؟ کس نے اردو شاعری کے یہ قول کن کا ہے آپ نے بتانا ہے،
کہ نظیر نے، آپ نے بتانا یہ قول کن کا ہے، نظیر نے اردو شاعری کے محل کے اندر چور دروازے کی بنیاد ڈالی اور پہلی دفعہ ہم بادشاہوں، نوابوں اور وزیروں کے ساتھ اردو شاعری کی بساط پر عام انسانوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ جی اگین یہ احتشام حسین کا قول ہے۔ بقول احتشام حسین صاحب، نظیر نے اردو شاعری کے محل کے اندر چور دروازے کی بنیاد ڈالی اور پہلی دفعہ ہم بادشاہوں، نوابوں اور وزیروں کے ساتھ اردو شاعری کی بساط پر عام انسانوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ چلیے جی، اب یہ بتائیے کہ نظیر کی نظم کلجگ کو، نظیر کی نظم جو ہے کلجگ کو، نظیر اکبر آبادی کی نظم کلجگ کو کس نے روسے کے معاشرتی عہد نامہ کے مماثل قرار دیا ہے؟ جی تو یاد رکھیے گا، مجنو گورکھپوری نے، مجنو گورکھپوری نے جو ہے روسے کے معاشرتی عہد نامہ کے مماثل قرار دیا ہے ان کی نظم کلجگ کو۔ چلیے جی، ایک آخری قول ہے یہ نظیر کے تعلق سے، نظیر اکبر آبادی اردو شاعری کے آسمان پر ایک درخشندہ ستارہ ہیں، یہ قول کن کا ہے؟ جی تو 1908 سے 1983 والے کا یہ قول ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا اور یہ کن کا قول ہے؟ جی تو بقول کلیم الدین احمد کا یہ قول ہے، نظیر اکبر آبادی اردو شاعری کے آسمان پر ایک درخشندہ ستارہ ہیں۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 31 کی طرف ساتھیوں۔ بیر بہوٹی ان میں سے کس کی نظم ہے؟ 1830 سے 1910 والے کی، یا نظم طیبہ طیبائی، سرور جہاں آبادی، یا پھر سیما اکبر آبادی کی؟ جی تو سوال نمبر 31 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا سرور جہاں آبادی۔ بیر بہوٹی اکثر جو ہے زمرے میں یہ سوال آتا ہے، اس نظم سے یہ نظم جو ہے زمرے میں آ جاتا ہے کبھی کبھی، تو یاد رکھے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں سرور جہاں آبادی کی پیدائش اور وفات کے بارے میں، اکثر جو ان سے سوالات بنتے ہیں۔ 1873 عیسوی میں پیلی بھیت میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور وفات 1910 عیسوی کو پیلی بھیت میں ہوئی ہے۔ ان کے کچھ تصانیف ہیں، تصانیف سے بھی کبھی کبھی سوال آ جاتے ہیں، جیسے کہ جامع سرور ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے، اللہ آباد، خمخانہ سرور، خمکدہ سرور، خون ناحق، نرنگ قلق، دشنام قلق، نشتر ماتم، نالا خونچکا، اور شیون، ہنگامہ محشر اور وصال، یہ ناول ہیں۔ شخصی مرثیے کے بارے میں بات کریں تو لالا چپت رائے کا مرثیہ، لالا لاجپت رائے کا مرثیہ، سوامی رام تیرتھ اور داغ وغیرہ کا جو ہے انہوں نے مرثیہ لکھا ہے۔ ان کے مشہور نظمیں یاد طفلی، یاد بچپن، نور جہاں، بیر بہوٹی، نرنگ زمانہ، رویائے اکبر، لکشمی جی، شکوہ سیاد، ایک جیلا وطن، سارس کا جوڑا، مناظر قدرت وغیرہ ہیں۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 32 کی طرف۔ ناول معصومہ کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ تو یہ اتنا امپورٹنٹ سوال نہیں ہے دوستو۔ جی تو سوال نمبر 32 کا صحیح جواب ہو جائے گا 5۔ ناول معصومہ کن کا ناول ہے؟ تو یاد رکھیے گا عصمت چغتائی کا ناول ہے۔ یہ ناول 1961 عیسوی میں شائع ہوا ہے اور اس میں جو ہے 5 ابواب ہیں۔ چلیے جی، اور یہ ناول جو ہے حیدرآباد کے پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ چلیے جی، عصمت چغتائی کی پیدائش و وفات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ 1915 عیسوی کو بدائی میں ان کی پیدائش ہے اور وفات 1991 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 33 کی طرف۔ لیچیاں، الوچے اور الائچیاں کس کا افسانہ ہے؟ ان میں سے 1912 سے 1955 والے، عصمت چغتائی 1915 سے 1991 والے، یا راجندر سنگھ بدری 1914 سے 1984 والے، یا پھر 1927 سے 2007 والے۔ جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں پہلا، یعنی 1912 سے 1955۔ سعادت منٹو کی یہ افسانہ ہے، یاد رکھیں گے، لیچی الوچے اور الائچیاں سعادت منٹو کا افسانہ ہے۔ سعادت منٹو کے کچھ افسانے مجموعے ہیں جن سے اکثر سوالات بنتے ہیں، تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ آتش پارے منٹو کا پہلا افسانی مجموعہ ہے۔ دھواں 1941 سے منظر عام پر آیا۔ آتش پارے کی سنیشات 1936 ہے۔ افسانہ اور ڈرامے لذت سنگ، سیاہ حاشیے، ٹھنڈا گوشت جو داخل نصاب ہے 1950 عیسوی میں شائع ہوا ہے، جس میں 8 افسانے شامل ہیں۔ چغت، خالی بوتلیں، خالی ڈبے، بادشاہت کا خاتمہ، نمرود کی خدائی وغیرہ ہیں۔ چلیے جی اگلے سوال دیکھیے گا۔ مثنوی کتب مشتری میں مشتری ابتدا میں کس نام سے مشہور ہوئی تھی؟
पद्मनी, सीनावती, भागमती या फिर मदमालती। जी, तो सवाल नंबर 34 का सही जवाब हो जाएगा भागमती। कुतुब मुश्तरी को किसने लिखा था? तो याद रखिएगा कुतुब मुश्तरी को मुल्ला वजही ने 1609 ईस्वी में लिखा था। और कुतुब मुश्तरी ये गोलकंडा की पहली तबाज़ात मसनवी है। याद रखिएगा गोलकंडा की पहली तबाज़ात मसनवी है कुतुब मुश्तरी। याद रखिएगा साथियों, कुतुब मुश्तरी को मुल्ला वजही ने जो है कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखे थे। कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखे थे। और इस मसनवी को जो है इन्होंने 12 दिन में लिखा था और इत्तफाक से इस मसनवी के किरदार भी 12 हैं। और इस मसनवी को यानी कुतुब मुश्तरी को सबसे पहले किसने मुरतब किया था? तो याद रखिएगा मौलवी अब्दुल हक ने 1938-39 ईस्वी में अंजुमन तरक्की उर्दू से शाये किया था मुरतब करके। मसनवी कुतुब मुश्तरी के अक्सर किरदार सैयारों के नाम पर है। अगर ये भी पूछा जाता है कि किस मसनवी किरदार जो है अक्सर सैयारों के नाम पर है, तो याद रखिएगा मसनवी कुतुब मुश्तरी। इस मसनवी में कितने उन्वान हैं? तो याद रखिएगा 1959 उन्वान है। कुतुब मुश्तरी एक उन्वान है जो बहुत मशहूर है, जिसका नाम है दर शरा शेर गोया। चलिए जी, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 35 की तरफ। सवाल नंबर 35 है, मज़ामीन पतरस के पहले एडिशन पर दिबाजा किसने लिखा? जी दोस्तों, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा दूसरा, रशीद अहमद सिद्दीकी। 1897 से 1896 से 1977 वाले मज़ामीन पतरस के पहले एडिशन पर दिबाचा जो है रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा था। बात करें पतरस बुखारी के बारे में, तो पतरस बुखारी का असल नाम सैयद अहमद शाह बुखारी था और तखल्लुस पतरस करते थे। इनकी पैदाइश 1898 ईस्वी में हुई थी पेशावर में और वफ़ात जो है 1958 ईस्वी को न्यूयॉर्क में। चलिए जी, बात करें दोस्तों मज़ामीन पतरस की, तो मज़ामीन पतरस में जो है टोटल 11 मज़ामीन शामिल हैं, जिनसे जो है अक्सर सवालात बन जाते हैं। और एक और चीज़ है, याद रखिएगा पतरस बुखारी को उर्दू का टॉम सिगरे भी कहा जाता है। जी, यहाँ आप देख सकते हैं मज़ामीन पतरस में शामिल मज़ामीन: हॉस्टल में पढ़ना, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, कुत्ते, उर्दू की आखिरी किताब, मैं एक मियाँ हूँ, मुरीद पीर का पीर, अंजाम बखैर, सिनेमा का इश्क, मैबल और मैं, मरहूम की याद में यानी साइकिल की सवारी, दोनों नाम है इसके, और ये दाखिले निसाब हैं, और लाहौर का जोग्राफिया ये भी दाखिले निसाब है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 36 की तरफ। काजी साहब की तहरीरों से तहकीक को जो ताकत और अनासिर मिलते हैं, उनमें ज़ाहिरी सतह पर सबसे नुमायाँ चीज़ तहकीक की ज़बान है और वह उसलूब जो मानियत से मामूर और रंगीनी से महफूज है। काजी अब्दुल वदूद के ताल्लुक़ से ये राय किसकी है? मालिक राम, रशीद हसन ख़ान, कलीमुद्दीन या फिर कालीदास गुप्ता रज़ा? जी, तो सवाल नंबर 36 का हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों रशीद हसन ख़ान। रशीद हसन ख़ान 1925 से 2006 वाले रशीद हसन ख़ान की पैदाइश 1925 ईस्वी को शाहजहाँपुर में हुई है और वफ़ात जो है 2006 ईस्वी को शाहजहाँपुर ही में हुई है। रशीद हसन ख़ान के तसानीफ़ से अक्सर सवालात बनते हैं, तो इनके तसानीफ़ देख लेते हैं साथियों यहाँ। जी, अदबी तहक़ीक़ मसाइल व तज्ज़िया इनका बहुत ही मशहूर किताब है जो 1978 ईस्वी में ज़ेर-ए-आम पर आया। उसके अलावा इंतख़ाब मरासी नसीर अनीस दबीर, इंतख़ाब मरासी अनीस दबीर, इंतख़ाब नज़ीर अकबर आबादी, इंतख़ाब शिबली, इंतख़ाब सौदा, इंतख़ाब नासिख़, इंतख़ाब कलाम नासिख़ और दीवान ख्वाजा मिर्दद, ये इनके मशहूर किताबें। उर्दू उमला, ज़बान और क़वाइद, इबारत कैसे लिखे, उर्दू कैसे लिखे, इनसे जो है सवालात बन चुके हैं। तलाश व ताबीर ये मज़ामीन का मजमुआ है। तफ़हीम, इससे भी सवाल बन चुके हैं। बाग़ व बहार को इन्होंने मरतब किया है, फ़सन अजायब को भी, और मसनवी गुलज़ार नसीम, मसनवियात शौक़, मसनवी सहरुल बयान, कुल्लियात जाफ़र ज़िटली, मुस्तलहात ठक्की, क्लासिकी अदब की फ़रहंग वगैरह को जो है इन्होंने मुरतब किया है। इंशा और तलफ़ुज़ और इंशाई गालिब इनकी मशहूर किताबें। सवाल नंबर 37 देखिएगा, रामायण का एक सीन किसकी नज़्म है? ब्रिजनारायण चकबस, फ़िराक गोरखपुरी, जोश या फिर पंडित दयाशंकर नसीम? जी, तो सवाल नंबर 37 का हमारा सही जवाब हो जाएगा साथियों पहला, यानी ब्रिजनारायण चकबस। रामायण का एक सीन
UGC नेट के नसाब में शामिल बीरज नारायण चकबस्त का ये नज़्म है। बात करें चकबस्त की तो बीरज नारायण चकबस्त इनका नाम था और तखल्लुस चकबस्त करते थे। पैदाइश 1882 ईस्वी को फैज़ाबाद में हुई और वफ़ात 1926 ईस्वी को राय बरेली स्टेशन पर फारिज के हमले की वजह से हुई थी। पंडित बीरज नारायण चकबस्त की पहली नज़्म कौन सी है तो हुब्बे कौमी। हुब्बे कौमी जो है पंडित बीरज नारायण चकबस्त की पहली नज़्म है जो 1894 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। याद रखिए दोस्तों, बीरज नारायण चकबस्त ने महानामा सुबह उम्मीद जो है इन्होंने 1918 ईस्वी में जारी किया था। 1918 ईस्वी में जो है इन्होंने जारी किया था महानामा सुबह उम्मीद। पंडित बीरज नारायण चकबस्त के शेर मजमूए से जो है अक्सर सवालात बनते हैं साथियों। तो पंडित बीरज नारायण चकबस्त के शेरी मजमूए जो हैं सुबह वतन, जलवाए सुबह और अगले लोग। सुबह वतन 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। याद रखिएगा, इनका पहला शेरी मजमूआ सुबह वतन 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है और इसमें 9 शख्सी मरसी यानी 9 मरसी हैं। शख्सी मरसी तो नहीं बता सकते लेकिन इसमें 9 मरसी ज़रूर है। उसके अलावा जलवाए सुबह और अगले लोग, ये इनके तीनों शेरी मजमूए हैं। ड्रामे इनके राज दुलारी और कमला, राज दुलारी और कमला ये इनके ड्रामे हैं। इनके मशहूर नज़्मों में रामायण का एक सीन, हुब्बे कौम, मुरक्का इबरत, नालाए दर्द, दर्दो दिल, फूल माला, फरियाद कौम, आवाज़ कौम, कौम मुसद्दक़, कृष्ण कन्हैया, आबे अंगूर और बरक़ी इसला, लौट कर्जन से झपट, खाके हिंद, दाखिल नसाब, कौम की सुरमाओं की औलाद, हमारा वतन, दिल से प्यारा वतन, बरसात और हुब्बे वतन। चलिए जी, पंडित बीरज नारायण चकबस्त के कुछ मशहूर अशार हैं। ज़िंदगी क्या है, नासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है, इन्हीं आजज़ा का परेशान होना। इससे सवाल बन चुका है, हो सकता है आइंदा भी कहीं बन जाए। मशहूर शेर है इनका। ऐ खाके हिंद तेरी अज़मत में क्या गुमा है, दरियाए फैज़ कुदरत तेरे लिए रवा है। ये इनके दाखिल नसाब अशार हैं। सवाल नंबर 38 देखिएगा दोस्तों, गालिब जदीद शोरा के एक मजलिस में किसका मजमून है। रशीद अहमद सिद्दीकी, ख्वाजा अहमद अब्बास, कन्हैयालाल कपूर, पतरस बुखारी। जी तो सवाल नंबर 38 का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा यानी कन्हैयालाल कपूर। याद रखिए, गालिब जदीद शोरा के मजलिस में इनके मजमुआ संगो खिश्त 1942 में शामिल है। गालिब जदीद शोरा के मजलिस में पैदाइश कब हुई है कन्हैयालाल कपूर की तो 1910 ईस्वी में हुई है लायलपुर में और वफ़ात 1980 ईस्वी को लायलपुर में ही हुई है। इनके तसानीफ से अक्सर सवालात बन जाते हैं। इनके तसानीफ संगो खिश्त 1942 ईस्वी मंजराम पर है, चंगो रबाब 1944 में, शीशा वतीसा 1940, नोक नश्तर 1949, बालों पर 1954, नरम गरम 1957, गर्द कारवा और नए शगुफ़े। इसका ज़मानी तरतीब से याद रखने का तरीक़ा मैं बताया था। संग चंग शीशा नोक बाल नरम गर्द नए, संग चंग शीशा नोक बाल नरम गर्द नए। चलिए सवाल नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। फूल सुर्ख है ये किसका अफसाना है तो सवाल नंबर 39 का हमारा सही जवाब हो जाएगा कृष्णचंद्र। याद रखिएगा 1914 से 1977 वाली की ये तख्लीक है, ये अफसाना है। कृष्णचंद्र का ये तसनीफ़ है। कृष्णचंद्र का पहला 1914 ईस्वी को हुई है पंजाब में और वफ़ात 1977 ईस्वी को मुंबई में। कृष्णचंद्र का पहला अफसाना कौन सा है तो यरकान है। यरकान कृष्णचंद्र का पहला अफसाना है। पहला अफसानी मजमूआ कौन है तो तिलिस्म ख़याल है। और पहला नावल इनका कौन सा है तो याद रखिएगा शिकस्त है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। तसलसल किसकी नज़्म है, इनमें से तसलसल किसकी नज़्म है, हाली, शिबली, अली सरदार जाफरी या फिर अख्तरुल इमाम। ये तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा अख्तरुल इमाम। 1915 से 1996 वाले की ये नज़्म है तसलसल। अख्तरुल इमाम की कुछ मशहूर नज़में हैं जिनसे सवालात बनते हैं साथियों। एक लड़का यादें में शामिल है, एक लड़का ये दाखिल निसाब है, कुल्लू पत्रा से भी सवाल बना है, पगडंडी, मस्जिद, पुरानी फसील, जमूद, मौत, नक्शेपा गिरदाब में शामिल है, जनबी, शिकवा, सजदा, तारीख सैयारा, खाको खून, रेत के महल, मोहब्बत, अहद वफ़ा, तारीख सैयारा में शामिल है, मैं और तू, तमाशा, जानशरी, शिकस्त खां, इंतज़ार और कूज़ागर, क़बर, बिनते लम्हात, बाज़ाम, शीशे का आदमी, रूस अलबलाद, जिला वतन, गुरेज़, नया आहंग। चलिए एक सवाल का जवाब दीजिएगा, आहंग किनका शेरी मजमुआ है। और इससे जो है सवाल बना था यही दिसंबर में जो इम्तहान हुआ था, दिसंबर 2023 में इम्तहान हुआ था, उसमें ये सवाल बना था आहंग किनका शेरी मजमुआ है। तो वो राइट वो ज़ुमरा था दोस्तों आहंग वाला। तो आपने बताना है आहंग किनका है। नया आहंग तो ये अख्तरुल इमाम का है, लेकिन आहंग किनका है आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। चलिए इसके अलावा जो है इनके काले सफ़ेद परों वाला परिंदा, तवक्कुल, गूंगी औरत, डासना स्टेशन का मुसाफिर, इससे भी सवाल बन चुका है ज़ुमरे में।
اور کربلا باز گشت تسلسل ہے صادقہ گریز پا توازن وغیرہ، اور یہ زمیں میں شامل ہیں، ان کے مجموعہ میں زمیں میں شامل ہے توازن۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں ساتھیوں، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔